ایک رات نبی پاک صلاللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر گہری نیند میں سو رہے تھے۔ نیند کے عالم میں انہوں نے ایک عجیب سپنا دیکھا۔ انہوں نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی رومال ہے۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا، اے جبرائیل، تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام مسکرا کر بولے، یا رسول اللہ، آپ خود اسے کھول کر دیکھ لیجئے، تب سمجھ جائیں گے۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رومال لیا اور دھیرے دھیرے کھولا۔ ارے، اس رومال کے بھیتر ایک ننھی بچی کا چہرہ چمک رہا تھا۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا اور فوراً بول پڑے، یہ تو میرے عزیز دوست ابو بکر کی بیٹی عائشہ کا چہرہ ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا، جبرائیل، مجھے یہ چہرہ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے ادب سے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ وہی خوش قسمت لڑکی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی عزیز بیوی بنے گی۔ وہ اپنے محبت سے آپ کے غم اور تکلیفیں مٹا دے گی۔ اتنا کہہ کر جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے، اور اسی وقت نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بے چین ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگے۔ سوچتے سوچتے ان کے دل میں سوال اٹھے، ابو بکر کی بیٹی تو ابھی بہت چھوٹی ہے، دن بھر تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ پتلے کھیلتی رہتی ہے، اتنی چھوٹی عمر کی بچی میری ہمسفر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ محبت کا مطلب ہی کیا جانے گی؟ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات تک وہی سپنا دیکھتے رہے۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ انہوں نے سر جھکا کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کر لیا۔ کچھ ہی وقت بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا اور نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنہائی سے بھر گیا، تو وہ ابو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ آنگن میں ننھی عائشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پتلے کھیل رہی تھیں۔ ان کی پوری توجہ بس کھیل پر تھی۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے اور مسکرا کر پوچھا، کیا کر رہی ہو عائشہ؟ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ عائشہ نے معصومیت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ میرا گھوڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے ذرا مذاق کیا اور کہا، اچھا ٹھیک ہے، سمجھ گیا، لیکن عائشہ، تمہارے گھوڑے کے تو پنکھ بنے ہیں۔ ارے، گھوڑے کے تو کبھی پنکھ نہیں ہوتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا معصومیت اور تیزی سے بولی، کس نے کہا آپ کو کہ گھوڑے کے پنکھ نہیں ہوتے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی پنکھ تھے؟ ان کی یہ بات سن کر نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زور سے ہنس پڑے کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ہنستے ہوئے دیکھا کہ ان کے نورانی دانتوں کی مسوڑے تک صاف دکھائی دینے لگے۔ سبحان اللہ! نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے ہی عائشہ کی تیز یادداشت اور ذہنیت سے واقف تھے، لیکن اس دن کی یہ معصوم سی بات ان کے دل پر گہری چھاپ چھوڑ گئی۔ انہوں نے سوچا، شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو میری ہمسفر چنا ہے۔ اس کی یادداشت اور عقل میں میری امت کے لیے بڑا بھلا چھپا ہے۔ واستو میں آگے چل کر یہی ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان 7 مہان صحابہ میں سے ایک بنی جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث بیان کی۔ صرف انہی کی زبان سے 2210 حدیثیں بیان ہوئیں۔ سبحان اللہ! اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرت خولہ بنت حکیم کے پاس گئے۔ خولہ بنت حکیم ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی گہری دوست تھیں۔ پہلے بھی نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سے انہوں نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے یہاں نکاح کا پیغام پہنچایا تھا، اس لیے اس بار بھی نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور اپنے تینوں سپنوں کا پورا حال بیان کر دیا۔ پھر فرمایا، خولہ، تم ابو بکر کے گھر جاؤ اور میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو۔ خولہ بنت حکیم یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور فوراً ابو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر چلی گئیں، لیکن اس وقت ابو بکر گھر پر موجود نہ تھے۔ تو خولہ ان کی بیوی ام رومان کے پاس پہنچیں اور انہیں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پیغام سنایا۔ خولہ بنت حکیم کی زبان سے یہ باتیں سن کر ام رومان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی بہت خوش ہو گئیں۔ وہ تو برسوں سے اس شبھ خبر کا انتظار کر رہی تھیں۔ خوشی سے ان کی زبان جیسے تھم سی گئی۔ ادھر اللہ کی قدرت دیکھیے، خولہ ابھی اس گھر سے باہر بھی نہیں نکلی تھیں کہ اسی وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر پہنچ گئے۔
जैसे ही खौला ने उन्हें देखा, उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा, ए अब्बू बकर, जरा गौर से सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उन्होंने तुम्हारी बेटी आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजा है। अब तुम बताओ, इस बारे में तुम्हारी राय क्या है? ये सुनकर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की खुशी का ठिकाना न रहा। वो तो हमेशा से चाहते थे कि किसी तरह अल्लाह उनके घराने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी में जोड़ दे, लेकिन कभी हिम्मत न कर पाए कि ये बात खुद जुबान से कह सके। अब जब नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुद पैगाम आया था, तो अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु खुशी से फूले न समाए। उन्होंने वहीं सिजदा किया और कहा, ये तो अल्लाह की ही मर्जी है। अल्लाह ही चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी का निकाह नबीजी के साथ कर दूं। लेकिन सिजदे से सिर उठाकर थोड़ी देर सोच में डूब गए और फिर बोले, खौला, ये निकाह कैसे हो सकता है? नबीजी तो मेरे भाई हैं और आयशा उनकी भतीजी से तो निकाह नहीं हो सकता। खौला यह सुनकर सीधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और सारी बातें बता दी। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, अब्बू बकर मेरे असली खून के भाई नहीं हैं, वो तो मेरे दीन के भाई हैं, इसलिए इस रिश्ते में कोई रुकावट नहीं है। नबी जी का जवाब सुनकर खौला का दिल खिल उठा। वह फिर दौड़ी दौड़ी अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के घर गईं और यह शुभ खबर सुना दी। अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में खुशी की लहरें दौड़ गईं। उधर नन्ही आयशा रजी अल्लाहु अन्हा अपने पड़ोसियों के घर सहेलियों के साथ पुतले खेल रही थीं, और इधर उनकी दूध माँ वाइला रजी अल्लाहु अन्हा उन्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो रही थीं। आखिरकार जब उन्होंने आयशा को पड़ोस में खेलते पाया तो घर ले आईं। फिर उनका हाथ पांव धोया, बाल संवारे और उन्हें सुंदर कपड़ों में दुल्हन की तरह सजाया। इसके बाद आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को लेकर बागदादी सगाई के छोटे से जलसे में लाया गया। यह महफिल बहुत ही सादा और छोटी थी। वहां बस आयशा, उनकी मां उम्मे रुमान, अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु, 2-3 सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। सुभान अल्लाह। निकाह का वक्त आया तो हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने खुद खुतबा पढ़ा और 500 दिरहम महर तय किया। इसी के साथ निकाह मुकम्मल हो गया। ये था दुनिया के सबसे अजीम इंसान, रहमतुल लिल आलमीन, नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि का निकाह। उसके बाद रसूलुल्लाह की मक्का की सरजमीन पर दीन की दावत में मशगूल हो गए और नन्ही आयशा रजी अल्लाहु अन्हा अपनी माँ बाप के पास ही पड़ोस की सहेलियों के साथ गुड्डे गुड़िया खेलती रहीं। क्योंकि उम्र छोटी थी, वो बहुत शरारती भी थीं। उम्मे रुमान कभी कभी उन्हें डांट देती, लेकिन आयशा सुनती ही न थीं। एक दिन तो उन्होंने इतना शोर मचाया कि उम्मे रुमान ने गुस्से में डांट दिया। आयशा रोते हुए दरवाजे की चौखट पकड़कर मुंह फुलाकर खड़ी थीं कि तभी नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आ पहुंचे। उन्होंने उम्मे रुमान से फरमाया, मैंने आपको कहा था ना कि आयशा को कुछ मत कहना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। ये सुनकर उम्मे रुमान मायूस हो गईं और बोलीं, या रसूल अल्लाह, वो तो मेरी कोई भी बात मानती ही नहीं, और मैं कुछ कह दूं तो सीधा अपने अब्बा से शिकायत कर देती है। नबी जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, चाहे कुछ भी करे, आप सिर्फ मेरे लिए आयशा को कुछ मत कहिए, उसे उसकी मासूमियत में रहने दीजिए। उधर कुरैश नबूवत के बाद से ही मुसलमानों पर जुल्म ढाते रहे। 12 साल बीत गए और उनके अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही गए। काफिर कुरैश तो यहाँ तक साजिशें करने लगे कि नबी जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दें। इसी बीच मदीना के लोग नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर बुलाने लगे। उन्होंने वादा किया, या रसूल अल्लाह, आप मदीना आ जाइए, हम आपको और सभी मुसलमानों को पूरी हिफाजत देंगे और इस्लाम को कबूल करेंगे। गुप्त तौर पर मदीना के लोगों से यह बैत वादा पूरा हुआ। फिर नबी जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हुक्म दिया, तुम लोग चुपचाप 2-2 करके मदीना की तरफ निकल जाओ ताकि कुरैश को पता न चले। लेकिन इसके बावजूद बहुत से सहाबा छुप छुपाकर हिजरत कर गए। अब नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाने का पक्का इरादा कर लिया। बस अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार था।
एक दिन दोपहर को अचानक नबी जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर आ पहुंचे। नबी जी रसूलुल्लाह इस वक्त देखकर अब्बू बकर डर गए और बोले, या रसूल अल्लाह, लगता है कोई खास खबर है। नबी जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने फरमाया, अब्बू बकर, मुझे अल्लाह की तरफ से इजाजत मिल गई है कि मैं मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करूं। ये सुनकर अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु उत्सुक होकर बोले, या रसूल अल्लाह, क्या मुझे आपका सफर का साथी बनने का मौका मिलेगा? नबी जी रसूलुल्लाह मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ अब्बू बकर, इस सफर में तुम ही मेरे साथी रहोगे। ये सुनते ही अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू बह निकले। खुशी से रोते हुए उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है कि मैं अपने नबी का हमसफर बनूं। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। जिस दिन आपने हिजरत की इच्छा जताई थी, उसी दिन मैंने 2 ऊंट खरीदकर उनकी देखभाल शुरू कर दी थी। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी छा गई। वो अब्बू बकर के घर में बैठ गए और शाम का इंतजार करने लगे। इधर हजरत अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु सफर की सारी तैयारियां करने लगे, लेकिन दूसरी तरफ गुप्त खबर मिली कि अब्बू जहल समेत सारे कुरैश के सरदार इकट्ठा होकर एक भयानक साजिश बना रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से मिटा देना है। यह खबर सुनकर नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचेरे भाई अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को बुलाया और फरमाया, अली, लोगों की सारी अमानतें ले लो और उन्हें उनके मालिकों को लौटा देना। आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सोना। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सब अमानतें ले लीं और नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हो गए। उधर मक्का की रात गहराने लगी। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की और फिर अब्बू बकर को साथ लेकर सफर के लिए खड़े हो गए। जब नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार होने लगे तो उन्होंने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से कहा, ऐ आयशा, हमारे लिए दुआ करना, हम हिजरत के सफर पर निकल रहे हैं। इतना कहकर वो अब्बू बकर के साथ रवाना हो गए। लंबा सफर, रास्ते की मुश्किलें और दुश्मनों के खतरे झेलते हुए आखिरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु मदीना पहुंच गए। कुछ दिन बाद ही हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा और उनका पूरा परिवार भी मदीना आ गया। समय बीतता रहा। एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोले, या रसूल अल्लाह, आयशा आपकी पत्नी है, उन्हें इज्जत के साथ अपने घर ले आइए। यह कहकर जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए। अल्लाह की क्या कुदरत! अगले ही दिन अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु खुद नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोले, या रसूल अल्लाह, आप अपनी पत्नी को घर क्यों नहीं ला रहे? नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा संकोच में पड़ गए और धीरे से बोले, अब्बू बकर, मैं सोच रहा हूं, दरअसल मेरे पास अभी पूरा महर मौजूद नहीं है। यह सुनकर अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इजाजत ली और घर की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते उनके दिल में यही ख्याल घूम रहा था, मेरी बेटी तो नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है और महर की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु सोचने लगे, अगर अभी नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर दूं तो यह कितना बेहतरीन काम होगा। यह सोचकर वो घर गए और वहां से 500 दिरहम निकाल लाए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बोले, या रसूल अल्लाह, ये मेरा तोहफा है। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तोहफा कबूल किया और उसी रकम को हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा का महर बना दिया। इस तरह उनका महर अदा कर दिया गया। उस वक्त आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की उम्र सिर्फ 9 साल थी। अब अल्लाह के हुक्म से नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा को अपने घर लाने का फैसला किया। छोटा सा प्रोग्राम हुआ, उसमें सहाबा ए इकराम और अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु का घराना शामिल था। इसी सिलसिले में आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा को नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर ले आए। यहीं से उनका शादीशुदा जीवन शुरू हुआ। किताबों में उस कमरे का जिक्र आता है जहां नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा रहते थे। वो एक छोटा सा कमरा था, दीवारें मिट्टी की बनी हुई, छत खजूर की पत्तियों और टहनियों की थीं।
बारिश का पानी अंदर न टपके, इसके लिए ऊपर एक तरह का कपड़े का पर्दा डाल दिया गया था। यही था हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा का कमरा। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा खुद कहती हैं, हमारी जिंदगी इतनी सादा थी कि घर में दिया जलाने के लिए तेल तक नहीं होता था। कई बार पूरा महीना यूं ही बीत जाता, मगर चिरागा जलाने की भी सुविधा नहीं होती। हम तो चांदनी रात में ही रहते और कभी अमावस की घुप अंधियारी में। वो आगे कहती हैं, तेल तो हमारे पास पकाने के लिए भी नहीं होता था, तो दिए के लिए कहां से आता। अगर कभी थोड़ा बहुत जैतून का तेल होता भी तो हम उसे खाना पकाने में इस्तेमाल कर लेते। इसी तरह महीने दर महीने गुजरते। अगर किसी सहाबी से कोई तोहफा आता तो वही हमारा एक वक्त का खाना बन जाता। तोहफा भी क्या, कभी 2-4 खजूर, कभी 1 कटोरा दूध, कभी 2 रोटियां, बस यही। लेकिन मोहब्बत की कमी कभी नहीं हुई। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा कहती हैं, भले ही खाना थोड़ा होता, लेकिन हम दोनों साथ बैठकर खाते। अंधेरे में जब हम खाना शुरू करते तो कई बार एक ही निवाले पर हम दोनों के हाथ एक साथ पड़ जाते। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा कहती हैं, हम दोनों मिल बांट कर खाते थे। कभी अगर मांस का खाना होता और मैं हड्डी चबा लेती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हड्डी को उठाकर उसी जगह से चबाते जहां मेरे दांत लगे होते। फिर कहती हैं, अगर मैं किसी प्याले से पानी पीती तो नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी प्याले को उसी जगह से अपने होंठ लगाकर पानी पीते जहां से मैंने पिया होता। सुभान अल्लाह। ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी बेहद मोहब्बत और खुशियों से भरी हुई थी। हाँ, उनका छोटा सा घर था, उसमें न तो कोई कीमती सामान था, न ही कोई आलीशान सजावट, लेकिन उस घर में मोहब्बत और सुकून इतना था कि लगता था जैसे जन्नत का कोई टुकड़ा वहीं उतर आया हो। याद रखिए, पैसा, दौलत, शोहरत, ये सब इंसान को असली सुकून नहीं दे सकते। असली सुकून सिर्फ दिल का सुकून है। जिसने दिल का सुकून पा लिया उसने सारी दुनिया पा ली। या अल्लाह, हमारे हर घर में ऐसी मोहब्बत और सुकून अता फरमा। आमीन।